Yes. Did you eat? Did you play? Did you meet people? No, I guess. Okay. My Diwali was good. It was good, but I don't know why I'm getting this cough is not going, but it will go. I know that because one of you are praying for me. Now, when we do this carbonyl, क्या बोलते हैं, what we are studying is we are studying the reactions for aldehydes and ketones. Now, when I talk about the reactions of aldehydes and ketones, I am basically talking I'm talking about addition reactions across the carbonyl group. Since I'm talking about aldehydes and ketones, the primary group attached to aldehydes and ketones is the carbonyl group, and the double bond is between the carbon and the oxygen. तो ये bond टूटेगा तभी नया additions हो पाएगा because there's a double bond here only. So when this double bond will break, there is possibility of addition of other compounds, other elements, and other groups. So we've seen many addition reactions, addition of water, addition of this, that, dagdam. Different types of compounds were getting added across this carbonyl group. Now we saw that they are all nucleophilic addition reactions. हमने एक at length discuss किया था what exactly are nucleophilic addition reactions. I hope everybody remembers, beta. Why were we Yes, calling sir. this as nucleophile? Because the electronegativity difference between carbon and oxygen, the pi electrons are shifted towards oxygen, because of which partial negative charge is there on oxygen, because of which partial positive charge on carbon. So the negative reagent जो nucleophile आएगा वो अपना क्या बोलते हैं कार्बन को अटैच करेगा, but that also depends कि वो कार्बन कितना स्ट्रॉन्ग ये है न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्टर है, या तो एसिड के प्रेजेंस में होगा या फिर एब्सेंस में होगा. यू रिमेंबर गाइस, हमने एकदम डिटेल में ये डिस्कस किया था. Yes, sir. वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड. So let us see the addition of Grignard's reagent across this carbonyl group. आता ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट म्हणजे काय, हा पण एक ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड आहे. मी याला ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड कशाला म्हणतोय, कारण याच्यात ऑर्गॅनिक ग्रुप म्हणजे आर आणि मेटॅलिक बोले तो मॅग्नेशियम, आणि याच्यात हलाइड पण आहे, तर ऑर्गॅनोमेटॅलिक हलाइड कंपाऊंड पण आपल्याला आपण म्हणू शकतात. R is the organic group, Mg is the metal part, and X is the halide part. RMgX. Will this RMgX also be a little polar in nature? Yes or no? Sir, repeat. Will Grignard reagent be polar in nature? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट बेटा. Yes. Why will it be? Because magnesium is electropositive, halide is electronegative, and alkyl group as carbon as compared to magnesium is going to act electronegative. Beta, electronegative is comparable, na beta, or metals are the most electropositive. Carbon is a non-metal. So carbon and magnesium को जब हम compare करेंगे, carbon is going to be electronegative and the shared pair of electrons should go towards carbon. इसलिए R के ऊपर देखो माइनस दे रखा है, Mg के ऊपर प्लस. Yes, sir. Right? Yes. Yes. अच्छा, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा बेटा, बताओ मेरे को. Which group is going to be the nucleophile over here? R. ये R minus है ना? Halide group. ना R is a long chain ना बेटा, तो long chain Yes. रहेगा, तो as compared to single halogen there are going to be more R's, so electron pull is going to be towards the alkyl group ना बेटा. Yes. ठीक है, Yes. तो R minus is going to be the nucleophile over here. तो nucleophile attack reaction होगा ये, right? Let us see how will it process. आ जाओ. This is Grignard reaction. It is added to the carbonyl group.
R will attach to the carbonyl carbon. ये देखो बेटा, because R क्या है अपना nucleophile, and MgX will attach to O. But this is a simple addition compound. ये जो बनेगा बेटा मेरे को, this is going to be a simple addition compound across the carbonyl group. But don't you think this looks like a little complex structure? Right? This is the complex which is formed over here. तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस Yes. करेंगे. हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर में से क्या मिलता है, HNOH. वो H यहाँ आ जाएगा और MgXOH अलग हो जाएगा. ठीक है? On hydrolysis, this is giving me a alcohol. Guys, did you follow this? Yes, sir. Yes, sir. What happened? RMgX, polar compound बना. Alkyl part will be negative, MgX part will be positive. Nucleophile इसमें से क्या हो जाएगा, R minus. It will first attack the car. Always remember, nucleophile will attach to the carbonyl carbon atom. तो ये bond टूटेगा and R is going to go over here. Remaining part is going to attach with oxygen because ये bond टूटा तो oxygen का भी एक valency free हुआ. I get this complex. This complex can be simplified and converted into an alcohol by simply hydrolysis. H2O में से H and OH निकलेगा. The H is going to attach with the O to form the alcoholic group, and MgXOH का अपने को यहाँ पे side product मिलेगा. Clear guys? Yes, sir. Yes, ये sir. लिख लिया. This is the general reaction. Huh? Can we go ahead? Yes, sir. Yes. ये देखो, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ सेम रिएक्शन करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा कि टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा? Primary alcohol. अच्छा. Why, Aaron? Why are we calling this as primary alcohol, beta? What is the reason why I'm calling this compound as primary alcohol? This compound, the one I'm using the cursor on. अनिरुद्ध, अल्काइल ग्रुप एक है ना? आए. अक्षय नायर बोलो बेटा. अल्काइल ग्रुप एक है ना? कार्बोनिल कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए. बाकी दो हाइड्रोजन है बेटा. ठीक है? तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन या फिर फॉरगेट अबाउट कार्बोनिल कार्बन, जो मेरा अल्फा कार्बन एटम है. व्हाई एम आई कॉलिंग दिस कार्बन एज अल्फा कार्बन एटम बेटा? बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा. अल्फा के साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज प्राइमरी. अगर यहाँ पे होता अल्काइल ग्रुप तो क्या होता अक्षय नायर? क्या? अगर यहाँ भी आर होता है, यहाँ भी आर होता, सेकेंडरी हो जाता. अगर यहाँ भी आ रहा है सेकेंडरी तो हो जाता. टर्शियरी हो जाता. राइट? यस यस. I hope you all are remembering the basics, beta. We Yes, have sir. discussed Yes, this sir. in length also, primary, secondary, tertiary. At any point of time, if you find any difficulty, you can speak up, you can ask. दूसरे aldehydes के साथ secondary aldehyde मिलेगा, and ketones के साथ tertiary Tertiary alcohol. tertiary alcohol. Very important बेटा. All these questions आपको entrance में बहुत काम आएंगे बेटा. ये जो generalized reaction लिखा हुआ है ना, this is, you might be finding this as just a theory thing, but trust me beta, if you just remember this by applying logic na, you are actually developing your brain for all tough questions in entrance. Done? सर, Clear? alcohol chapters में हो गया था ये भी. हाँ बेटा बिल्कुल. As I said, reactions and methods of preparation आपको पूरे part 2 में से सिर्फ एक ही बार करना है, because आधा ही करना है आपको. जो इतना दिया है ना उसका आधा ही होता है, because सब repeated होता है. Right बेटा? Yes. चलो, so I'll go ahead now. ठीक है? Primary, secondary, tertiary alcohol. आता अपन करूया एडिशन ऑफ अल्कोहल्स. ये वाला भी हुआ रहेगा ना आपको अल्कोहल चैप्टर में?
This must be done in reactions of alcohols, addition to aldehydes or carbonyl group carbon atoms. No. Yes, sir. Acha. Alcohol will break into what, beta? Alcohol will break. ये देखो. Addition of alcohol. R dash OH में alcohol गिरेगा, टूटेगा. ROH में टूटेगा. तो R is going to attach to one क्या बोलते हैं कार्बन एंड O के साथ दूसरा OH अटैच हो जाए, राइट? नहीं, O के साथ R अटैच होगा और दूसरा इसमें OH अटैच होगा. बट दिस इज अ hemiacetal. This is hemiacetal. What why am I calling this as hemiacetal? ए बेटा यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप भी है एंड CrOR. ये कौन सा ग्रुप है? बोले. This is carried out in the presence of dry HCl and इसको continuous we will carry out to get you ROR compounds. A ROR is what functional group beta? Oxygen between two alkyl groups. Ether. Ether एक Ether है. ना. ये देखो जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड मिला अपने को. जेम जेमिनल डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड सुना है बेटा आप लोग ने? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. जेमिनल मतलब सेम साइड, विसिनल मतलब जेमिनल मतलब सेम कार्बन एटम, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम. अब देखो बेटा ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है, दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप ना. अल्काइल एंड ऑक्सीजन, अल्काइल एंड ऑक्सीजन, both the alkoxy groups are attached to the same carbon atom. So this is the geminal dialkoxy compound. Dialkoxy मतलब दो alkoxy groups है ना बेटा यहाँ पे. ये alkoxy Yes. group कहाँ से आया? अल्कोहल टूटा, ROH टूटा, OH जो है कार्बन को अटैच हुआ एंड R जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ. ये ऑक्सीजन और R कहाँ से आया? यहाँ पे. दिस डबल बॉन्ड जब टूटता है तब एक बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होता है और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है यहाँ पे. Am I clear, guys? Yes, sir. Yes. लिख लिया बेटा? No, sir. लिखना है. ओ डन बेटा. सर एक बार जेमिनल और विसिनल का एक बार रिपीट करो ना फिर से. क्या बेटा? सर जेमिनल और विसिनल का आपने जो बताया वो रिपीट करो ना. हाँ, geminal compounds are those compounds in which on the same carbon atom the groups are attached. They can be any functional group. ठीक है? It can be it can be halide, it can be क्या बोलते हैं hydroxyl group. यहाँ पे alkoxy group attached है to the same carbon atom. अभी this is one carbon atom, this is other carbon atom, right बेटा? R है मतलब यहाँ पे कार्बन होगा ना बेटा? कार्बन है. Yes. तो Yes. अगर एक OR यहाँ पे होता और दूसरा OR इस कार्बन आइटम पे होता तो आजू बाजू में हो जाते, विसिनिटी में हो जाते, नेबर्स हो जाते. Yes. Yes, sir. देन दैट वुड बी कॉल्ड एज विसिनल क्या बोलते डाइअल्कोक्सी कंपाउंड्स. दिस इज जेमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड्स. जेमिनल मतलब सेम कार्बन आइटम पे सेम ग्रुप अटैच्ड. ओके Yes, sir. पक्का? Yes. Again, this is an example of a acid catalyzed nucleophilic addition reaction.
ये देखो, ये देखो बेटा, this is a acid catalyzed nucleophilic reaction. Why can I say this is an acid catalyzed? बच्चे देखो हम लोग मीडियम में क्या यूज कर रहे हैं, ड्राई HCl. This is a acid, right? So this HCl is acting as a catalyst over here. जो H plus रिलीज हो रहा है, जो H plus रिलीज हो रहा है, वो इस ऑक्सीजन के साथ पहले अटैच होता है. इस ऑक्सीजन के साथ पहले अटैच होगा तो ये ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ के ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे. Now this carbon is becoming more positive and now the nucleophile can attack. So this is weak. This is a weak. क्या बोलते हैं, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल. रिमेंबर मैंने ये भी आपको बताया था स्टार्टिंग में. Yes, sir. ठीक है. So addition of alcohols is a acid catalyzed nucleophilic addition reaction. Which acid we are using over here? Dry HCl, dry hydrochloric acid. Okay. Yes. ऑक्सोनियम कटायन बनता है यहाँ पर. ठीक आहे. इट्स अ रिव्हर्सिबल रिएक्शन. आता कीटोन्स वर केला तर काय होईल, ये देखो. जब अपन अगर ये कीटोन्स के ऊपर करेगा तो अपने को अल्कोक्सी ग्रुप नहीं बट हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलता है. तो हियर वी गेट इथिलीन ग्लाइकोल एंड क्या बोलते हैं, व्हेन यू फर्दर कैटलाइज इट और फर्दर रिएक्ट कैरी ऑन द रिएक्शन, you get a cyclic compound called as ethylene glycol ketal. Ethylene glycol ketal. At the removal of a water molecule. Hey, Yes, sir. तो कीटोन्स के साथ अपने को ग्लाइकॉल मिलता है और अल्डेहाइड्स के साथ अपने को डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स मिलता है. ठीक है. मैंने टेस्ट लेना है तुम लोग का इन सब चीजों. Done, sir. ओके. ये देखो, ये देख, जो हम लोग को अल्कोहल को एडिशन करके, अल्कोहल का एडिशन करके जो मुझे एसिटल और कीटल मिला ना, एसिटल किससे मिलेगा बेटा मेरे को, अल्डेहाइड से. कीटल किससे मिलेगा मुझे, कीटोन से. They can be converted back to aldehydes and ketones and alcohol can be separated from them by simple acid catalysis at room temperature. This is the reason we are calling that reaction as a reversible reaction. Okay. Yes. वो उसमें रिवर्सिबल का साइन था ना पिछले वाले इसमें. सो देखो बेटा, हमने क्या किया, अल्डेहाइड के अंदर अल्कोहल ऐड किया तो मुझे यहाँ पे एसिटल मिला. कीटोन के अंदर मैंने अल्कोहल ऐड किया तो मेरे को कीटल मिला. Same can be reversed back. So this is a reversible reaction. सर लिखना था वो पीछे का. Now let's look at the addition of ammonia and its derivatives. क्या हुआ बेटा, सर पीछे का लिखना था. ये Yes. लिखो, लिखो, सिर्फ लिखो मत. ये जो मैं बोलता हूँ ना बेटा, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट्स, वो भी एरो मार्क करके, मतलब ऐसा ब्रैकेट बना के साइड में लिखते रहने का. बिकॉज व्हेन यू रिवाइज इट्स वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Otherwise, they are just plain reactions which are in the book.
Done, sir. Now, let us discuss the addition of ammonia and its derivatives. Ammonia पता है ना, NH3? Yes. Yes. अच्छा. So this is a general reaction for the addition of ammonia and its derivatives to the carbonyl group. Carbonyl अतः ammonia and its derivatives. अभी ammonia is NH3. उसका एक हाइड्रोजन निकल के मैं कोई दूसरा ग्रुप लगा दूं तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा वो. Yes. This G stands for globe. No. What does the G stand for? It stands for any group. Okay बेटा. ये देखो. तो उसको G से क्यों represent किया फिर? It's just a general group beta. It can be any group which is attached over there. We will see certain examples also. So again, this is a acid catalyzed reaction. Now, अब ये acid catalysis reaction में देखो हो क्या रहा है. What is breaking? ये देखो. What is happening बेटा? NH2G है. तो सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा? देखो मैंने पॉज किया हुआ है. तो हाइड्रोजन अमोनिया में से निकला और एक जा रहा है O के पास और एक जा रहा है कार्बन के साथ with the nitrogen and the group. Did you see this? Yes. तो NH2G में से एक H ऑक्सीजन के साथ मिलके ऊपर जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप के पास और बाकी का जितना भी टर्म्स है NH and the substituent group attached to that ammonia वाला compound will go to the carbon atom. ये देखो. But don't you think this looks like a very unstable compound over here? Yes. Right? So what's going to happen is there's going to be a condensation reaction. Hotter molecule will be removed and कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड आकर के एक डेरिवेटिव कंपाउंड मिलेगा हमको यहाँ पे. ए बेटा ये देखना H2O निकल गया और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया विद दिस. गाइस Yes, sir. अरे सी दिस NH2 में से एक HO के साथ बन गया और जो कार्बन का ये वाला बॉन्ड फ्री हुआ NHG यहाँ पे लग गया, कॉम्प्लेक्स बन गया. फिर उसमें से ये H2O निकल गया और ये कार्बन का ये बॉन्ड फ्री हो गया, उसने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया NHG करके एंड वाटर मॉलिक्यूल साइड में आ गया. नायर, सुरेश, जॉसलिन, मानस, श्रेया, तन्मय, पीयूष. Present. Hey, I'm not asking attendance, man. What is wrong with you? Aman, Aaron, Swayam, are you understanding? Sleep. Yes. Okay. Shinde, समझा बेटा? Yes, sir. Are you tired of saying yes sir again and again? You can also choose to keep quiet, but I am absolutely fine with that. No, sir. Not You're at such a all. sweetheart. ये देखो हमारा ट्रेन का ग्रुप में लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं. घर के लिए सुबह सुबह इडली डोसे का नाश्ता चाहिए, कोई अच्छी जगह बताओ. नॉनसेंस. कुछ लोग काम नहीं है तो मैं लेटर से पीछे. These are imines. You remember last class में आया था ये नाम Yes. Yes. है ना. तो the amines are different. Amines क्या होता है बेटा? When NH group is attached to carbonyl carbon. यहाँ पे only nitrogen and its derivative group is attached to carbon atom. So this double bond between the carbon and nitrogen, this thing, and some other functional group attached and other R's here, this thing is called as imines. ए बेटा जैसे ये C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल बोलते हैं ना, ऐसे ये C डबल बॉन्ड N को अपन imines बोलते हैं. याद रहेगा? Yes. Yes.
लिख लिया? सर यहाँ पे स्टार्टिंग में वो कार्बोनिल ग्रुप जब ऐड होता है ना अमोनिया के डेरिवेटिव से, हाँ तो बेटा, उसमें H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम में वो रिएक्ट हो रहा है क्या? यस H प्लस इस ब्रैक इसके ऊपर H प्लस मतलब दिस इज एसिड कैटलाइज्ड, एसिड का कैटालिसिस होता है यहाँ पे, सिंपल. यस. And generally most of the reactions of aldehydes and ketones are acid catalyzed nucleophilic addition reactions. ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना बेटा मैंने? यस सर. हाँ जी, ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखें. स्टेप 1 देखो बेटा. तो एसिड में से हाइड्रोजन आयन जो होगा वो रिलीज होगा. इट विल अटैच इटसेल्फ टू द ऑक्सीजन. अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का अनस्टेबल बॉन्ड दिख रहा है आप लोग को. ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, बट यहाँ पे आई कैन सी 3 बॉन्ड्स. तो क्या होगा? नाउ ऑक्सोनियम कैटायन बनेगा. फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा. अब जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नहीं समझे? तो नहीं समझा वाला. नहीं समझा, ठीक है. ओके, are you looking at this carbonyl group over here? यस. Everybody just listen to me, but and please follow what I'm talking. कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑल वैलेंसी सेटिस्फाइड, नो चार्ज, राइट? यस. अच्छा, when this H plus ion is coming and it is attaching itself to oxygen, this is going to happen. It is attaching itself to oxygen. Oxygen cannot form 3 bonds, na? Oxygen has the capacity to form 2 bonds only, na beta? यस. अभी जब यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिसको शेयर करने हैं, जो उसने कार्बन के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं. ए बेटा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तुमको पता है? यस. जब ये हाइड्रोजन H प्लस आता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए, बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है देने के लिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. यस. तो वो अपना 2 लोन पेयर इसको दे देगा. जब अपना 2 लोन पेयर इसको दे देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है. यस. ठीक है, अब ये अनस्टेबल हो गया, यस. राइट? तो क्या करेगा ये? इसका जो लोन पेयर वहां गया था, ये वाला बॉन्ड तोड़ के ये लोन पेयर अपने ऊपर ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेगा. ठीक है? यस सर. अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर ले लेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा बिकॉज कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया. यस. तो इसीलिए ऑक्सोनियम कैटायन बन गया. व्हाई ऑक्सोनियम? ऑक्सीजन एंड कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन एंड अल्काइल ग्रुप. गाइस, डिड यू फॉलो व्हाट डिड आई जस्ट से? यस सर. बच्चों, कार्बन एंड ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड. ओके, नाउ the problem is oxygen only has 2 electrons to share, which it has already shared with carbon. So here there are 2 double bonds. But ये जो एसिड का H प्लस है वो आके ऑक्सीजन को अटैक कर रहा है बेटा. एंड ये क्या बोल रहा है? भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तू तेरा लोन पेयर देना. तो ऑक्सीजन बोलता है ठीक है भाई, ले ले मेरा लोन पेयर. तो ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर देता है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कम हो गए बिकॉज ये शेयर नहीं कर रहा है, डोनेट कर रहा है. तो इसके पास H प्लस हो गया. अब ये प्लस हो गया, बोलता है अरे भाई मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे पर पॉजिटिव चार्ज मत दो. ये बोलेगा कार्बन, मैंने तेरे साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और जो तेरा इलेक्ट्रॉन है वो दोनों मुझे दे दे भाई, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं. तो कार्बन बोलेगा ठीक है ले ले. तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था पूरा इसके ऊपर आ जाएगा एज लोन पेयर. और कार्बन के का एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. डिड यू सी हाउ डिड दिस पॉजिटिव चार्ज मूव टू कार्बन? पहले ऑक्सीजन पे आया, फिर कार्बन पे आया. Are you Yes. looking at the cursor I'm moving on the screen? Yes sir. Is everybody in this class understanding what are we talking about? Aryan, Aman, Arin, Jaslin, Kedar. Yes. Guys, this is very simple. Huh? Piyush, Poonam, Sahil, Sharon. यस सर. बच्चे समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ आ रहा है. चलो, great. Akshay, I hope this is very clear now. Huh? Yes sir. I hope you all are writing down the mechanism because ऐसा देखने से
एरोज बनाओगे ना तो इजी पड़ेगा बेटा. I am unable to use the board because I have many guests at my house and they all have what do you say, hijacked my room where there is the board. So there are people lying on the floor, on the bed, on the balcony, on the veranda, in the bathroom. So I just cannot use the board. That is why I'm using. Otherwise, I would have shown you how to make these arrows and all. अच्छा, तो ये हो गया acid catalysis. So after doing this acid catalysis, when this hydrogen is forming this H bond, अभी कार्बन अपना प्लस हो गया ना, कार्बन प्लस हो गया, कार्बन प्लस हो गया मतलब कोई नेगेटिव एटम आएगा जो न्यूक्लियोफाइल होगा और इसके साथ टच करेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है. ये बेटा Yes. न्यूक्लियोफाइल will attack that group which is positive, right? Because it is nucleus loving nucleophile. Yes. तो कोई नेगेटिव Yes. ग्रुप यहाँ पे अटैच होना चाहेगा बेटा, राइट? Yes. Yes. अरे Yes, sir. है ना. अच्छा अच्छा, अब आता है मेरा अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स का रोल. मुझे बहुत जल्दी हो गया, ये देखो, विल गो स्लोली. देखो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेसिक नाइट्रोजन, ये देख बेटा. नाउ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ऑन द कार्बन ग्रुप. ये देख, ये जो मेरा कार्बन था उस पे NH2G जो ग्रुप था, this entire group was negative because nitrogen was negative and having a lone pair. तो क्या किया इसने, कार्बन के साथ अटैच किया अपने आप को यहाँ पे. तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया. अब जो पॉजिटिव चार्ज दैट वाज ऑन कार्बन, इट नाउ शिफ्टेड टू नाइट्रोजन. Yes. बिकॉज नाइट्रोजन क्या किया, अपना जो लोन पेयर था वो कार्बन को दे दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, Yes. राइट. तो अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन बिकॉज यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इन अ कंपाउंड देयर शुड नॉट बी चार्जेस, राइट. सो वी गेट अ इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट लाइक दिस. और अगर मैं ये एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दूं, तो जो हाइड्रोजन जाएगा अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर छोड़ के जाएगा टू मेक दिस पॉजिटिव एज न्यूट्रल. बिकॉज अब इसने अपना एक लोन पेयर कार्बन को दिया था, अब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो ये बोल रहा है अरे मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं हूँ, हाइड्रोजन निकल. हाइड्रोजन को निकालेगा तो इसके ऊपर लोन पेयर आ जाएगा, पर ये हाइड्रोजन उसी सोल्यूशन में रहेगा, तो बोल देगा अरे भाई ले ले, अरे भाई चला जा, अरे भाई ले ले, अरे भाई चला जा. कंटिन्यूअसली ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता रहेगा, Yes. राइट. अब ये कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करना है अपने को. Guys, is this too confusing? Guys, पे वो हाइड्रोजन जाने के बाद वो नहीं समझा लोन पेयर को. ओके ओके, यहाँ तक समझा बेटा. ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कैसे आया, हाँ, yes sir. ये पूरा Donate का के पूरा electrons. ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है. ये पूरा का पूरा ग्रुप स्टेबल था बेटा, ठीक है. ये पूरे का पूरा ग्रुप पे सब बॉन्ड सेटिस्फाइड था. अब बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे अटैक करेगा. जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जो इसको दे देगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है, तो ये स्टेबल हो जाएगा. बट अगर आप नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे. Yes. अच्छा, तो अब ये पॉजिटिव हो गया. ये क्या बोल रहा है, अरे मुझे पॉजिटिव नहीं रहना, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ. तो ये बोलेगा हाइड्रोजन तू बहुत छोटू है, निकलना. तो जब ये H को निकाल देगा, H प्लस हो जाएगा. जब H को निकाल रहा है बेटा वो, तो ये जो बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन्स था वो नाइट्रोजन के ऊपर रह जाएगा यहाँ पे, ऐसा, Yes sir. Yes. राइट. एंड दिस स्ट्रक्चर विल रेजोनेट बिटवीन द टू फॉर्म्स. हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन निकलेगा. अनस्टेबल हो गया मतलब स्ट्रक्चर, इसको स्टेबलाइज करना होगा. This is the intermediate product. Yes sir. Girls, Yes, sir. boys, Yes. and others will keep quiet. Aryan Tiwari, Sanika, Piyush,
चलो ठीक है. That's why I'm teaching Akshay Nair, Akshay Shinde and Sharon. ये 3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे से. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट आई होप ये तीनों को समझ में आ रहा है बेटा. Yes, sir. Guys, समझ आ Yes, गया. I said yes to the early morning lecture because I know your exams are nearing. Otherwise, I was going to take a leave for the entire Sunday thing. But no, I know my students wait for my lecture. Right, Akshay? You wait for my lecture. Yes. yes, Yes, sir. yes. मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं बहुत सीरियसली पूछ रहा था. ओके, चलेगा. अक्षय नायर, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? Yes. अच्छा, ग्रेट ग्रेट. So this is a complex now. ठीक है. So what's going to happen is इसका परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा. तो परमानेंट इलाज क्या करेगा? इसका ये कर देना, डिहाइड्रेशन कर देने का. डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो. ठीक है. तो ये दिख रहा है आपको जो हाइलाइटेड वाला OHNH है, वो अगर इसमें से निकल जाएगा, ये देखो. So I get this carbon to nitrogen double bond, which is called as, Imines. very good, which is Imines. called as imines. So हम लोग जो ये step 1, step 2, step 3 देखे, we were looking at the how imine group is formed. Okay बेटा? Once the logic is clear ना, it's very easy. ये देखो, what is happening in this imine formation? Elimination of water molecule in the presence of nucleophilic addition. So how will I call it as? I will call it as a nucleophilic addition elimination reaction. What is being eliminated over here, beta? Water molecule. What is being Water. added, beta? Nucleophile. In the presence Nucleophile. of what, beta? Acid. So this is nucleophilic addition elimination reaction. Imine group का formation. I don't know whether ये आपके portion में है या नहीं, but entrance के लिए काम आएगा बेटा ये. Yes, sir. ऐसे एरो बना के लिखे, ऐसे लिख ले एलिमिनेशन, आपको समझ में आएगा अच्छे से. ये जो इमाइंस फॉर्म हुआ है ना, उसको फिर कैसे मतलब लिखेंगे कैसे आयुपैक नेम से कि और उसके रिएक्शन देखेंगे, नाम देखेंगे बेटा. डन. See this. Aldehydes and ketones, they will react with ammonia derivatives with the general formula NH2G. ये देखो, here G will be equal to R. यहाँ पे जो G होगा, it will be any alkyl group, or it can be alcoholic group, or it can be ammonia group, or it can be cyclic ammonia group, or it can be urea group, anything it can be. Hey, Yes, sir. ये देखो, this is the general reaction which we studied. अब ये कैसे बना, उसका आपने 3 स्टेप्स देखा था. ये देखो, aldehydes and ketones, they react with primary amines. This is a primary amine. NH2 group attached रहेगा तो amine to give you a substituted imine. Imine क्यों बोल रहा हूँ? Because carbon nitrogen का double bond आ गया यहाँ पे attached to alkyl group. This is a substituted imine, which is also known as Schiff's base. Why am I calling this as a base? Because it has nitrogen. Nitrogen is a lone pair. Lone pair donating groups are called as bases. Lewis bases. Yes. याद आ Yes, रहा है sir. कि नहीं? Yes, sir. है ना? समझ रहे हो? ये देखो,
aldehydes and ketones, they react with hydroxylamine. What is hydroxylamine? It is ammonia का derivative. वो G यहाँ पे क्या हो गया? OH हो गया बेटा. yes sir, ठीक है, तो क्या मिलता है बेटा अपने को? करस्पॉन्डिंग ऑक्साइन. इमाइन एंड हाइड्रोक्साइड का कंबाइन किया तो ऑक्साइन, NOH ग्रुप अटैच्ड. ठीक है, yes. कोयल की आवाज सुनी? कोयल की नहीं, जोर से. एग्जाम्पल देखें. एसिटाल्डिहाइड को व्हेन आई रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल I get acetaldoxime and acetoxime, acetooxime. I hope this is clear, Akshay. Your query कि क्या compounds बनेगा and क्या नाम होगा, right? Yes sir, Sharon, Akshay Nair, Yes, sir. Yes. Iman. Yes. Written? Done? नहीं no sir लिखना है. ये examples लिख लो. Hey, did you guys see my Diwali pics? Yes sir, status. Yes. Status and Instagram देखा तुम लोगों ने? It is so beautiful. Should I enter a contest for the best Diwali pics? No. Who said no? Done, guys? Done? Done sir. ये देखो, ये एक और डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आ गया. हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन. ये इसके ये वाले कंपाउंड बन रहे हैं, हाइड्रोजोन बन रहे हैं. फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, NH2 NH2. NH2 का डेरिवेटिव्स फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन. इतना डिटेल्स में नहीं है, बट इट्स गुड टू हैव इंफॉर्मेशन. हाइड्राजीन से हाइड्रोजोन बन रहा है. सर उसको लिखना है. Is the background noise disturbing you? No, No. I have. Can you hear my guest speaking? no sir. No, sir. Great. If it is disturbing, please let me know. I will arrange for the needful. Done, guys?
Done, sir. ओके बेटा, ये देखो एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन के वो जनरल रिएक्शन था जो आपने अभी लिखा। ये एग्जांपल देखो, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन का बेसिक वाले का। हाइड्राजीन से क्या मिलता है? एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन एंड एसीटोन हाइड्राजोन। इट इज बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपको बेसिक वाले अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स याद रखने हैं जो आपके सामने है, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। Done? ये देखो, ये लिखा था ना हमने? Yes, sir. Yes, sir. नहीं नहीं, हमने ये वाला पार्ट लिखा था, इसका प्रोडक्ट लिखा था आप लोगों ने, फिनाइल हाइड्रोजोन डाइन, ये लिखा था ना? Yes, sir. Product हाँ के ठीक साथ लिखते हैं. हाँ, ठीक है, लेट अस गो। The water hydrosomes, they are insoluble solids and very high melting points, very sharp melting points. So when you an oxime and hydrazone is refluxed with HCl, I get my parent aldehydes and ketone back. I'm so sorry. So oximes and hydrozones are used for the detection and purification of. ये क्या हो रहा है? Purification of aldehydes and ketones. This is something which you might need to remember, which you might get a help in entrance also. That oximes and hydrozones, जिनका formula आप लोगों ने लिख भी लिया है, they are used for the detection and purification of aldehydes and ketones. Just a statement. Clear, guys? Yes, sir. Yes, पक्का? sir. अच्छा, ये लिखना है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी है क्या पोर्शन में? Yes, sir. नहीं है ना? ओके, Sir है carboxylic acids. यही चैप्टर का पार्ट है ना वो भी? Yes, sir. तो इस चैप्टर को अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्यों बोला है, कार्बो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों नहीं बोला है? एनी आइडिया? एनीवन? Sir parts में divide किया रहेगा ना? They must be falling short of space to write the name, maybe that. So aldehydes and ketones is clear to everyone. I tried simplifying the reaction wala part better for you. Yes, sir. Yes, sir. Beta, the key is you need to revise this, bache. See, you are understanding when I'm showing you or when it is then being done in the class, but you have to take out time for self-study and revise and redo it. Then only it is going to have a place in your mind. Aldehydes. Sir बेटा, पीछे का slide कर दो ना. क्यों बेटा? ये लिखा नहीं अभी तक अक्षय? सर थोड़ा बाकी था, अभी हो गया. तुरंत करते पीछे हो गया तेरा, है ना? परेशान करता अक्षय मेरे को. Done, sir. हो गया. अच्छा, अभी देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन द COOH ग्रुप. अभी ये बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड्स आणि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में एक चीज, वन थिंग इज कॉमन. व्हाट इज दैट वन कॉमन थिंग? Carbonyl group. Which is the carbonyl group you're talking about over here? C double bond O.
C double bond O. करेक्ट, बट स्टिल उसके अंदर H और R था, ये कार्बन के अटैच्ड। यहाँ पे क्या होगा बेटा? OH अल्कोहल। OH, यहाँ पे OH अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोनिल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं हम लोग। तो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बो एंड एक एक्सिल क्यों आ गया? हाइड्रोक्सिल से आ गया, हाइड्रोक्सिल से XYL आ गया। समझिए बेटा क्यों हम लोग इसको कार्बोक्सिल बोलते हैं? Yes, sir. कार्बोनिल ग्रुप का कार्बो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक्सिल। संधि जोड़ो संधि तोड़ो, तेरा आधा नाम लिया मेरा आधा नाम लिया, पूरा नाम बनाया, है ना बेटा? Yes. Carboxylic acids are widespread in nature. Look at all this. These are the sources of carboxylic acids, natural sources of carboxylic acids. ये बेटा मच्छी, fish. So there are fatty acids which are क्या बोलते हैं, important component of our diet. So in limited quantities these fatty acids are good, but if you have it in unlimited quantity like me, then you will become like me beta, fat. Okay, so these phospholipids, fats, oils, they all contain carboxylic acids. कितना कॉम्प्लेक्स ग्रुप से देखो ये। तो जनरली कॉमन नेम्स होता है जो उसके सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। ये क्या है पता है तुमको? टूटी। ये क्या है पता है? बटर। ये पता क्या है? विनेगर। Vinegar. Vinegar. आपको पता है, मैंने आपको बताया था फॉर्मिक एसिड क्या होता है? Yes sir, वो Yes, sir. आंट And से से होता है. अरे एंट बेटा, ये एंट काटती है ना आपको। आपको कभी एंट ने काटा है जिंदगी में? Yes. तो आपने उसको वापस क्यों नहीं काटा बेटा? वो बहुत छोटी थी इसलिए। So ants na, they don't bite. They do not have teeth to bite. Humans have teeth to bite. Ants have acids in them. So when they sense danger, they release the acid, and that acid is really burning. And इसलिए चींटी काटती तो अपने को बहुत खुजली मचती। अभी वो बहुत कम क्वांटिटी में एसिड बनाता है वो। ये बेटा चींटी कितना छोटा होता है, राइट? बट ऐसा बहुत सारा चींटी काटेगा तो फिर बहुत सारा एसिड आएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है ना? yes. Yes. तो इसीलिए कभी एंट हिल में जाने का नहीं बेटा। Their common names are usually derived from Latin or Greek words, from their sources वगैरह उस पर डिपेंड करता है। Look at this common acid. All the common names will end with IC acid. UC acid, IC acid बेटा। ये देखो, formic acid, Latin word is formica. Formica का मतलब लैटिन में क्या होता है बेटा? Red ants. Formica in Latin means red ants. So you will get confused that whether we are learning chemistry or we are learning Latin language, but no, we are learning chemistry. Formic acid is a common name derived from formica. Formica in Latin means लाल चींटी। क्यों लाल चींटी? बिकॉज लाल चींटी ही फॉर्मिक एसिड डालती है अपने ऊपर। जहां देखा बेटा मार डालो। एसिटिक एसिड देखो, CH3COOH, common name. It is derived from Latin word acetum, which means vinegar. I hope you all are all writing this. Yes. Yes. So acetic acid is common name is derived from acetum. Acetum in Latin means vinegar. Similarly, butyric acid is Latin word butyrum, which is the Latin name for butter.
butyric acid beta, CH3, CH2, CH2, COOH. Why am I calling this as butyric acid का one more reason? 4 कार्बन एटम दिख रहा है? ब्यूटेनोइक एसिड। करेक्ट, बट ब्यूटरिक एसिड इसको कॉमन नेम क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज बटरम, लैटिन में बटर को बटरम बोलते थे। कैप्रोइक एसिड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट फैट, केपर, केपर मतलब गोट, गोट फैट में से कैप्रोइक एसिड मिलता है। इसका कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड इसलिए है क्योंकि ये केपर से मिलता है अपने को, केपर का फैट से मिलता है। केपर बोले तो गोट। ये बेटा बकरी। ये देखो, अभी डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या हो जाएगा? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। कॉमन Yes. नेम्स देखें, ऑक्सैलिक एसिड सुना होगा आप लोग ने, COOH, COOH, COOH twice, oxalic acid. Some common names you need to remember: malonic acid, succinic acid, glutonic acid, adipic acid. ये सब नाम सुने? ग्लूटारिक, सॉरी। देखें, how to remember the names by mnemonics? Oh my such good apple. Oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid, adipic acid. I don't know why this is easy, but they are saying so, it must be. Do you find this easy, better to remember? Oh my such good apple. How dumb is that? But we need to remember it. So we'll do all dumb things to remember things. Hey, Yes, sir. Yes, sir. लिखा बेटा ये? इसका कॉमन स्ट्रक्चर पता कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर COOH लिखने का, CH2 उसके नीचे CH2 उसके नीचे COOH, ऐसा। इसको बस एक्सपेंड करते रहने का। गाइस, Yes, sir. लिख लिया? Position of the substituent is denoted by alpha beta. देख बेटा, this is the functional group COOH. COOH is the functional group. इसके just next वाला कार्बन is alpha, उसका बीटा, गामा, डेल्टा. This we remember, right? Yes. कार्बोक्सिलिक ग्रुप के adjacent अल्फा, नंतर बीटा, नंतर गामा, नंतर डेल्टा, ABCD को मोर, अब अल्फा बीटा गामा यूज करेंगे। यहां देखें, अल्फा बीटा डाइमिथाइल कैप्रोइक एसिड, कॉमन नेम। अरे Yes, sir. जब ये अगर साइड चेन नहीं होता तो ये क्या था? कैप्रोइक एसिड। बट साइड चेन आ गया, कहां पे आया है? कॉमन नेम डालना है। इसके बाजू का अल्फा बीटा, 1 2 3 नहीं बोलेंगे कॉमन नेम में, अल्फा बीटा बोलेंगे। Yes, sir. डाइमिथाइल, मिथाइल ग्रुप लगेला है किस एसिड के ऊपर? कैप्रोइक एसिड के ऊपर। ये देखो। सर लिखना है उसको। हाँ बेटा, लिखो बेटा। Oh my God, such good apple. Done, sir. Dimethyl caprioic acid. Aromatic acids are derivatives of benzoic acid, C6H5COOH, benzoic acid बेटा। ये देखो, अब इसमें आप कोई भी डेरिवेटिव लगा दो, सीधी सी बात है। This you will represent by ortho meta para position. ये देखो, पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, OP डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। इजी ना बेटा? जिस पोजीशन पे साइड चेन रहेगा उसकी और मेंशन करके
जो भी ग्रुप रहेगा उसका नाम मेंशन करके बेंजोइक एसिड। ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। देन ये देखो, मिथाइल बेंजोइक एसिड्स आर गिवन स्पेशल नेम्स। ए बेटा, मिथाइल सब्स्टिट्यूट रहेगा तो टॉलिन बोलते हैं ना हम लोग उसको। तो यहाँ पे Yes. इसका जहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूशन रहेगा ना, उनका स्पेशल नेम आ जाएगा। ओ टोल्यूइक एसिड, एम टोल्यूइक एसिड, पी टोल्यूइक एसिड। समझ रहे हो? Yes. ए बेंजीन सब्स्टिट्यूट, मिथाइल सब्स्टिट्यूट बेंजीन इज टोलिन। अभी यहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप है एसिड, तो अभी बेंजीन है करके उसका स्पेशल नाम टोलिन था, कॉमन नेम वाला, तो इसीलिए उसी का नाम दे देंगे टोलुइक एसिड। समझ रहे हो? Yes. सर मिथाइल बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका वो भी नाम है, मिथाइल बेंजोइक एसिड। नॉट ओनली मिथाइल, ओ मिथाइल बेंजोइक एसिड, ओ मिथाइल एम बेंजोइक मिथाइल एसिड। बेंजोइक एसिड, पी मिथाइल बेंजोइक एसिड, या फिर टोलुइक एसिड, वन एंड द सेम थिंग। Done, sir. Done. IUPAC system, very important. IUPAC system बेटा, अल्केन, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ओनली, ई निकाल देने का करस्पॉन्डिंग अल्केन का, एंड OIC एसिड कर देने का, ओइक एसिड। अल्केन में से -E प्लस OIC एसिड विल गिव मी द IUPAC नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड। अल्केनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। ऐसे सब कर सकते हैं ना नाम हम लोग बेटा, ये इजी पड़ता है ना Yes. IUPAC। ए Yes, sir. ये देखें, ये देखो, ये कौन सा एसिड दिख रहा है? HCOOH। अपने को नॉर्मल नाम क्या था इसका? फॉर्मिक एसिड ना? Formic acid. अच्छा, तो इसके अंदर कितना कार्बन आइटम दिख रहा है बेटा आपको, इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप? One ही है। वन कार्बन आइटम वाले अल्कीन को क्या बोलते हैं? मीथेन। तो मीथेन में से E निकाल दो, ओइक एसिड डाल दो, ये क्या हो जाएगी बेटा अपनी? मीथेनोइक Phenoic एसिड। acid. Phenoic acid. ये सो इजी। Yes, sir. यहाँ देखें, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, so easy. You have to count the carbon of the carboxylic group also. तुमने वर्ड का आवाज सुना? Yes. कितना सुंदर था ना? It's a new bird which has come in my area. Done बेटा? Done, sir. इज्जत के साथ ई को निकाल दें, OIC एसिड डाल दें, IUPAC नाम मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। Higher numbers, longest chain containing the carboxylic group is selected. Number is done from that end such that the carboxylic group gets the least number. यहाँ देखें, methyl hexanoic acid, 4 methyl hexanoic acid. Very easy बेटा। For naming compounds containing more than one, ठीक है, E, जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा ना बेटा, तब हम लोग E को रिटेन करते हैं, निकालते नहीं है। अल्केन का जो E रहेगा ना उसको निकालेंगे नहीं बेटा, ठीक है? Yes. अल्केन
डाई ट्राई जो भी रहेगा अल्केन डाई ओइक एसिड। ठीक है बेटा, इसमें ई रहेगा, इसका नाम बताएं आप। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन ट्रायोइक एसिड। पक्का? यस सर। ये देखो, three carboxyl groups on the first, second, and third carbon atoms. Propane 1, 2, 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ए बेटा पोजीशन भी मेंशन करना पड़ेगा ना साइड से, इसका फंक्शनल ग्रुप का। तो दिस इज योर राइट, प्रोपेन क्या बोलते हैं, 1, 2, 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है सर अल्केन वो पीछे में ट्रायो ओइक लिखा था बस, मतलब कार्बोक्सिलिक नहीं लिखा था, तो ओइक और कार्बोक्सिलिक दोनों चलेगा? दोनों चलेगा बेटा, हाँ। बेंजीन को बेंजोइक एसिड जो कॉमन नेम है उसका, अपने आईयूपीएसी में क्या डाल देंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इसका जो कॉमन नेम है वो कितना प्यारा सा है ना बेटा, बेंजोइक एसिड, छोटा सा प्यारा सा। तो इसको भी आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है कि भाई बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या फिर बेंजोइक एसिड बोलो, आईयूपीएसी में दोनों एक्सेप्टेड है। सर ये देखें, साइड चेंज सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर 1 देने की। ये क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, थैलिक एसिड, बेंजीन 1, 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ए बेटा दिस इज 1, दिस इज 2, 2 कार्बन एटम मतलब इथेन, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, सिंपल। यस। कॉमन नेम क्या होता है उसका, एसिटिक एसिड, उसमें भी सेकंड पे फिनाइल है तो फिनाइल एसिटिक एसिड। समझ रहे हो, समझ रहे हो? यस ये देखो इसका कॉमन नेम, 2 COOH ग्रुप अटैच्ड है, पथैलिक एसिड है इसका नाम, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अरे यस सर। अभी देखते हैं नेम ऑफ द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एसिड है तो एसिड का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो उसमें से सॉल्ट मिलेगा उसका, यस HCl को अगर मैंने तोड़ा तो उसका सॉल्ट क्या मिलेगा, NaCl एंड करस्पॉन्डिंग व्हाटएवर H के साथ जाएगा वो। ये देखो फॉर्मिक एसिड और अमोनिया का सॉल्ट देखते हैं हम, अमोनियम फॉर्मेट, एसिड से सॉल्ट मिला है ना ये, अमोनियम यस फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से जो अमोनिया को रिप्लेस, अमोनिया को ऐड करके मिलेगा, ये अमोनिया इसमें अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल करके, अमोनियम, सॉरी नॉट अमोनिया, H प्लस निकलेगा तो NH4 प्लस आ सकता है ना उसकी जगह, सेम चीज है। यस अरे H यहाँ पे क्या था बेटा, HCOOH प्लस, यहाँ H था ना, वो H निकल के ये NH4 प्लस लगा दिया, तो क्या हो गया, ये अमोनियम ग्रुप है, इसलिए अमोनियम फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्म 8। इस अमोनियम ने एसिड को खाया, इट एट द एसिड, दैट्स व्हाई फॉर्मेट। Was this good or it was a very bad joke? So none of you are saying, that means it was a very bad joke, right?
No, sir. It's easy to remember ना. Yes. सॉल्ट ने एसिड को खाया, इसीलिए उसका नाम हो गया अमोनियम फॉर्मेट. अमोनियम एट द फॉर्मिक एसिड, दैट्स व्हाई अमोनियम फॉर्मेट. ये बेटा Yes, Yes. sir. समझा. हाँ. इस सॉल्ट का नाम बताओ क्या बनेगा फिर. पोटेशियम 2,3 डाइब्रोमो प्रोपियोनेट. ठीक है. पोटेशियम का Yes. सॉल्ट. ए बेटा, दिस वाज अमोनियम का सॉल्ट, दिस इज पोटेशियम का सॉल्ट. सॉल्ट किसका रहेगा, जिसका पॉजिटिव आयन है. ये तो साइड चेंज है. तो पोटेशियम 2,3 डाइब्रोमो प्रोप क्यों, बिकॉज 3 कार्बन एटम है. प्रोपियोनेट, एक कार्बन एटम था इसलिए फॉर्मेट. राइट. Yes, sir. अभी समझे. Yes. Yes. कार्बोक्सिलिक एसिड. ये देखो कितने सारे प्यारे प्यारे मेथड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के हमारे पास. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, carbonation of Grignard reagents, hydrolysis of nitriles, hydrolysis of acetyl chlorides and anhydrides, hydrolysis of esters. ये आधे रिएक्शन तो आप लोगों ने सीखे भी होंगे, तुमको पता है. नहीं पता तुमको. सर स्टार्टिंग का 2 हो गया है और अल्कोहल्स में. 2 हो गया है. ओके, बाकी का देखना बाकी है. चलें देखें. लिख लो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये सब हेडिंग्स. methods. Let us see how carboxylic acids can be prepared from primary alcohols and carbonyl compounds. इनका ऑक्सीडेशन किया ना, like acidified potassium permanganate और alkaline potassium permanganate और potassium dichromate हमने डी ब्लॉक में देखा था. they release nascent oxygen, they act as very good oxidizing agents, है ना. Yes. है ना. और chromium oxide in sulfuric acid, it gives carboxylic acids with the same number of carbon atoms. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो nascent oxygen निकल रहा है वो simply यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, तो COOH ग्रुप मिल रहा है मेरे को. Yes, sir. अच्छा. एग्जाम्पल देखें. 2-methyl butane 1 on oxidation with acidified potassium permanganate or alkaline this, what will it give me? You guys tell me. कौन-सा क्या एसिड मिलेगा इसमें, with same number of carbon atoms मिलता है. 2-methyl butanoic acid. ये मुझे लगता है, तुम्हें क्या लगता है? Sir, 2-methyl butanoic acid. ये तो मुझे लगता है, तुम्हें क्या लगता है बेटा? वही है सर. वही है. चलो. Oh my God, you are right. It's 2-methyl butanoic acid. सर ये जो प्राइमरी अल्कोहल्स लिया ना वो कन्वर्ट होगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रिस्पेक्ट में ही होगा, मतलब ऐसा दूसरा नहीं लिख सकते ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नहीं, we need a strong oxidizing agent. Potassium permanganate and potassium dichromate and H2SO4, they are strong oxidizing agents. Then लिख लिया बेटा. डन सर. Aldehydes can also be oxidized using Tollens reagent or Fellings reagent.
Now aldehydes के लिए it is just a mild oxidizing agent. क्यों? Because aldehydes के across O add करना is very easy. ये देखो, acetaldehyde oxidized to acetic acid. एक ऑक्सीजन ऐड करना है हमको बस कार्बोनिल कार्बन एटम को, और मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हो जाए तो बताएं। Ketones also give carboxylic acids on oxidation. However, एकदम रिगरस कंडीशन होगा तो ही, समझ गए? तो अल्डेहाइड्स तो इजीली माइल्ड इसमें दे देगा, बट कीटोन्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, I need to have very strong oxidizing agent and at high temperatures. Guys, Yes, sir. Yes, sir. क्यों? Because यहाँ पे दोनों कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? अल्काइल Alkyl. ग्रुप अटैच्ड है। Alkyl group. अल्डेहाइड्स में एक हाइड्रोजन होता है तो इसको इजीली तोड़ करके ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इट बिकम्स डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर्स। They form mixture of carboxylic acids. ये देखो, butanol on oxidation with concentrated and hot HNO3, it gives a mixture of propanoic acid and methanoic acid. मतलब जो मेरा कीटोन है वो जिन लोअर ग्रुप से बना हुआ है उन दोनों का मिक्सचर देगा मेरे को, ठीक है? ये ब्यूटेनॉल किससे बना है बेटा? देखो, सी डबल बॉन्ड ओ के अक्रॉस दो अलग अलग ग्रुप अटैच्ड है ना, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल और मिथाइल, Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे मेरे को मिक्सचर मिलता है इन कीटोन्स, तो दिस इज गुड और अल्डिहाइड इज गुड। Ketone दो मिलता है ना? दो मिलता है बट उन दोनों को फिर सेपरेट करने का मगजमारी रहेगा, प्लस वो लोअर ग्रुप वाला मिला है मेरे को, उस वाले के अंदर ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं लगता है, ज्यादा हल्का माइल्ड रिएजेंट लगता है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट भी चाहिए, Yes. है ना? ये देखिए, अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का है तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन कर देने का इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। अल्काइल बेंजीन, ठीक है? सो साइड चेन कितना भी बड़ा हो डजंट मैटर, बट द अल्काइल ग्रुप जो है it is going to get completely oxidized into carboxylic group that way। मतलब ये जो साइड चेन है ना, ये अभी तो यहाँ पे छोटा सा है, ये कितना भी बड़ा सही, कितना भी बड़ा जाने दो उसको, वो जो ये वाला ग्रुप है इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखें एग्जांपल, टॉलिन को देखें, इथाइल बेंजीन को देखें, इन्हों का ऑक्सीडेशन करो, आपको क्या मिलेगा? आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। ये देखो, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू COOS ग्रुप, बट टर्शियरी ग्रुप, tertiary alkyl will not give this reaction. Any idea anyone why this is happening? Why a tertiary alkyl substituted benzene will not give me a benzoic acid? Anyone? What is not there in tertiary alkyl जो primary और secondary में है?
ऐसा उसके पास क्या नहीं है? हाइड्रोजन वेरी हाइड्रोजन गुड, अल्फा हाइड्रोजन या फिर कार्बोनिल हाइड्रोजन नहीं है, राइट? यस देख बेटा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। यस समझ रहे हो? यस सर अच्छा, अच्छा, लिख लिया? नो सर क्यों? डन सर डन बेटा, कैसी बढ़िया बात रही। ये एग्जाम्पल देखें आप, एक देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट डाउन दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ओवर हियर, इस तरीके से। एनी मोरी मम्मी, लेक्चर, please excuse my mother, my mother speaks. Now guys, cook, cook मिलता है ऊपर, cook। और यही टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन को ले लें, नो रिएक्शन, नो चेंज, सिंपल। ये देखो, if you use strong oxidizing agent, suitable alkenes are going to give me corresponding carboxylic acids। ब्यूट 2ene का मैंने ऑक्सीडेशन किया, अल्कीन का ऑक्सीडेशन किया, आई गेट एथेनोइक एसिड एंड एथेनोइक एसिड, दो ठो एथेनोइक एसिड मिलेगा। ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस OOH ऐड होगा, ये अलग, और मेरे को ऐसा कार्बोक्सिलिक दो। लिखा? नो सर अच्छा, डन सर डन। Cycloalkenes are oxidized to dioic acids in the presence of strong oxidizing agents. Dioic acids. ये देखो, cyclohexene each in the presence of potassium permanganate और sulfuric acid, अपने को क्या मिलता है? Hexane 1,6 dioic acid or simply adipic acid. Adipic acid. Double bond to all these are addition reactions. Double bond टूटे और addition reactions हुए।
How? Eh, Done, sir. that mommy. Done, guys? Done, sir. Done, sir. चलो. Hydrolysis of nitriles and sorry, carbonation of Grignard reagent अपन next class में start करेंगे. ठीक है बेटा? Okay, guys? Yes. डब्बा भी रखिएगा.